आज व्यू 360 में تو یہ ایک بے بسی لاچاری ہے کہ آپ جاؤ تو کس کے پاس جاؤ تاکہ آپ کو ایک اوتھینٹک انفارمیشن ملے. ملیے ایک ایسے بیٹے سے جس نے کراچی طیارہ حادثے میں اپنے والدین کھو دیے. 42 سالوں سے جہاز اڑانے والے ایک امریکی ہواباز طیاروں کے حادثات پر کیا کہتے ہیں. ترک حکومت کے کرونا کے خلاف اقدامات پر انسانی حقوق کے اداروں کو اعتراض کیوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. عید سے 2 دن پہلے کراچی طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو اس واقعے سے متعلق جوابات اور اپنے پیاروں کی شناخت سے متعلق غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. اس حادثے کا شکار ہونے والوں میں عادل رحمان کے والدین فضل رحمان اور وحیدہ رحمان بھی شامل تھے. صبا شاہ خان سے گفتگو میں عادل نے اسی صورتحال پر بات کی جس کے باعث ان کا دکھ مزید تکلیف دہ بن گیا ہے. عادل، سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اس حادثے میں آپ نے اپنے والدین کو کھویا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حادثے کے بعد سے اب تک آپ کو اپنے والدین سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میرے بھائی ہیں فرنٹ لائن میں کراچی میں، وہ میری سورس ہیں جی. کے علاوہ جی پی آئی اے کی سائٹ پہ گیا تھا. پی آئی اے کی ویب سائٹ پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. پی آئی اے کی فیس بک سائٹ پہ ایک میسج بہت بریف سا ہے. پی آئی اے کی ٹویٹر سائٹ جو ہے اس پہ بھی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی. تو یہ ایک بے بسی لاچاری ہے کہ آپ جاؤ تو کس کے پاس جاؤ تاکہ آپ کو ایک اوتھینٹک انفارمیشن ملے. عادل، یہ بتائیے کہ وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹویٹ میں انیکسکیوزبل، کیئرلیس، انسینسٹیو، انکمپیٹنٹ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا؟ اتنی دور بیٹھا ہوں میں کیسے کچھ مدد کر سکتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ جا کے جو میری را فیلنگس ہیں میں ان کو تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں. تھوڑا مجھے بھی ریلیز مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی پڑھ لے اور میری مدد کرے. تو یہ پھر میں نے دیکھا کہ جی وہ تو میسج جو ہے آہستہ جو ہے دنیا پڑھ رہی ہے اور مجھے اس سے اسٹرینتھ ملنا شروع ہوئی. پہلے تو میں اپنا سوچ رہا تھا لیکن یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اب ہم نے سب کا سوچنا ہے. اور کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم جو ہے اپنا بندوبست کر کے جو ہے چلے جائیں. مل کے آپ لوگ کی سب کی مدد ہو سکے، کیا کر رہے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ لواحقین نے اپنا ایک جی واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہوا ہے. سب سے پہلا جی تمام کے تمام جو ڈسیزڈ ہیں جو کہ اس حادثے میں جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے ریمینز جو ہیں وہ پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہوں اور ان کی فیملیز تک پہنچ جائیں. ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری امیوں کو، ہمارے ابو کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو ٹریٹ یا اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے، جو کہ ابھی اس کا احساس نہیں مجھے مل رہا. دوسرا جو ہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی ایک بالکل امپارشل، ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو. اور جو تھرڈ ہمارا یہ ایسے حادثے دوبارہ ہمارے ملک میں دوبارہ کبھی نہ ہو اور کسی کو بھی اس قسم کے دکھ سے گزرنا نہ پڑے. یہ بتائیے کہ کیا انتظامیہ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جو چھوٹی سی میں نے اپنی تکلیف بیان کی تھی ٹویٹر پہ، اس کو دنیا میں 500,000 پلس لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اگر پی آئی اے کی انتظامیہ یہ کہ جی وہ مجھ سے پہنچ نہیں سک رہے، مجھ سے بات نہیں کر سک رہے، تو مجھے تھوڑا سا اس بات میں یقین کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے. سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا اور کیا اس حادثے سے ہم کچھ سیکھ پائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں ایمرجنسی رسپانس اور انفارمیشن شیئرنگ میں کوئی بہتری آئے گی؟ میری امید ہے جی یہ واقعہ جو ہے، یہ ٹریجڈی جو ہے، یہ ہمارے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جی ہمارے ملک کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی بھی کرائسس مینجمنٹ کا پروٹوکول نہیں تھا اور نہیں ہے. ایک لاجیکل مائنڈ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے یہ ادارے چلا رہے ہیں. عادل، اپنے والدین کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاؤ وڈ یو لائک دیم ٹو بی ریممبرڈ؟ ان کا اپنا ساتھ تھا 53 ایئرس کا. ابھی ہم دسمبر میں ابو کی 80 سالگرہ منا کے آئے تھے. تو اب سیکھا یہی ہے اپنے والدین سے جی کہ ہم زندگی میں بہت سی لائفز کو ٹچ کرتے ہیں. اب ہم جس لائف کو ٹچ کریں ہم نے اس پہ کیا پازیٹیو امپیکٹ چھوڑنا ہے.
कराची में गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स कल मलबे से मिलने के बाद तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरलाइंस के तर्जुमान का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तहकीकाती अमल में मददगार साबित हो सकता है। इस क्रैश के बारे में मुतासरीन, हलाक होने वालों के ख़ानदानों और ख़ुद मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के पास बहुत से सवालात हैं। कराची से मोहम्मद साकिब बता रहे हैं कि इन सवालात के जवाबात जानने के लिए कौन क्या कर रहा है। 22 मई को पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस PIA के एक मुसाफिर तैयारे को कराची में हादसा पेश आया था जिसमें 97 अफराद हलाक हुए थे और इनमें से 46 की डेड बॉडीज़ की शनाख्त की जा चुकी है, जबकि दीगर की डेड बॉडीज़ की शनाख्त का अमल जारी है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का काम भी जारी है जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कर रहा है और इसके तहत फ्रांस से 11 रुकनी जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और वो यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जहाज़ का मलबा उठाने का काम जारी है। अब तक की जो तहकीकात में पेशरफ्त हुई है वो ये है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये हासिल कर लिए गए हैं और अब इन्हें यहाँ से फ्रांस मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर डिकोड किया जाएगा। डिकोड करने के बाद माहिरीन इसका एनालिसिस करेंगे और इसके बाद ये बात सामने आ सकेगी कि वो क्या हालात थे, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह पर जहाज़ हादसे का शिकार हुआ है। इसमें कई नुकात पर गौर किया जा रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि क्या ये एक इंसानी गलती की वजह है या इसमें कोई फ़नी ख़राबी थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सही तरह जहाज़ को गाइड नहीं किया। और इसके अलावा एक और चीज़, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, क्या वो वाक़तन वो काम कर रहा था और अगर वो काम कर रहा था तो क्या वजह थी कि वो जहाज़ को गाइड सही तरह से नहीं कर पाया। पाकिस्तान के वज़ीर हवाबाजी का कहना है कि एक अबूरी रिपोर्ट 22 जून तक एक्सपेक्टेड है कि वो मिल जाएगी और इसे पब्लिक कर दिया जाएगा, लेकिन उन पर तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक तैयारे को हादसा पेश आया था, उसकी अबूरी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई है, जबकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन और उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ये रिपोर्ट जल्द से जल्द आम होनी चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि उनके प्यारे किन वजूहात की बिना पर हलाक हुए और आइंदा के लिए इसको एग्जाम्पल सेट किया जाए और इस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ कि इस तरह के हादसा रोनुमा ना हो। PIA तैयारा हादसे के बारे में सामने आने वाली मालूमात को पाकिस्तान से बाहर बैठे हवाबाजी के माहिरीन भी गौर से देख रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं अमरीकी हवाबाज हुआन ब्राउन, जो 42 सालों से जहाज़ उड़ा रहे हैं। वो अमरीकी फ़ौज और निजी एयरलाइंस के साथ भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। हुआन का कहना है कि कोई एक चीज़ जहाज़ के गिरने का सबब नहीं बनती। मसाइल की सूरत में कॉकपिट में बैठे लोग कैसे फ़ैसला लेते हैं, इसी बारे में उन्होंने बज़रिए स्काइप सारा ज़मान से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। When a situation like this is happening where you see that you are just seconds away, जब आप लैंडिंग से कुछ ही लम्हे दूर हों और अचानक सब कुछ गड़बड़ होने लगे तो कॉकपिट में बैठे अफराद के जहन से क्या गुजरता है? what goes on in the minds of those who are sitting in the cockpit? You always need to be ahead of the jet. You can an experienced आपको हमेशा जहाज से आगे रहना होता है। एक तजर्बाकार पायलट बहुत पहले ही हालात बदलते देख लेता है, 10,000 फीट तक आने से बहुत पहले। तजुर्बेकार पायलट भी लैंडिंग से पहले बहुत तेज या बहुत ऊंचाई पर हो सकता है, मगर उस वक्त हमें ये तस्लीम करना होता है कि हम तरीकाकार के मुताबिक नहीं जा रहे और दोबारा चक्कर लगाकर लैंडिंग की कोशिश करनी होगी। लैंडिंग के वक्त क्या कैलकुलेशन होती है? कराची का रनवे तकरीबन 11,000 फुट लंबा है, तो जहाज को किस मकाम पर जमीन को छूना चाहिए? standard operating procedure for all आमतौर पर जहाजों को रनवे के पहले 1/3 हिस्से पर उतरना चाहिए। अगर ऐसा ना हो और जहाज पहले 3,000 फीट के अंदर भी ना उतरे तो दोबारा उड़कर आना होता है। of a long runway, you must go around. People are asking why लोग not? पूछ रहे हैं कि जहाज जब जमीन से लग ही गया था तो बेली लैंडिंग क्यों ना कर ली, दोबारा क्यों उठाया? तो बेली लैंडिंग का क्या तरीका होता है और क्या वो मुमकिन भी थी? A belly landing is your absolutely last resort. If पहली लैंडिंग तो बिल्कुल आखिरी हरबा होना चाहिए। landing gear, there are अगर आपके लैंडिंग गियर में कोई बड़ा मसला है तब भी उसे हल करने के लिए कई तरीके होते हैं। अगर जहाज को नीचे लाते वक्त लैंडिंग गियर में खराबी का पता चले तो इरादा तर्क करके दोबारा जहाज को उड़ाया जाता है और इस दौरान मसला हल किया जाता है। out. Juan, you have flown the A320 aircraft. आप A320 उड़ा चुके हैं, वो क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर लैंडिंग गियर नहीं खुल पाता? Some reasons for that. It could be a hydraulic problem, could be an electric. मसला कहीं भी हो सकता है, हाइड्रोलिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, कंप्यूटर में, लेकिन उनके बावजूद एयरबस A320 में पहिए खोलने के लिए हाथ से भी एक डायल घुमाया जा सकता है। On the Airbus A320. There's a design limitation on the Airbus where the maximum
लेकिन उन जहाज़ों के डिज़ाइन में ये शामिल है कि अगर लैंडिंग के वक्त रफ्तार 250 नॉट से ज़्यादा हो तो पहिए नहीं खुलते। इसका मकसद ये है कि जहाज़ के पहियों और दरवाज़ों को टूट फूट से बचाया जा सके। एक सेफ्टी वॉल्व भी होता है जो आपको लैंडिंग गियर खोलने नहीं देता अगर रफ्तार 260 नॉट से ज्यादा हो तो। from lowering the landing gear if your airspeed is above 260 knots. जहाज के फर्स्ट ऑफिसर का क्या किरदार होता है? Well, we don't know who's talking on the radio. Usually you have a pilot flying. रिकॉर्डिंग्स में पता नहीं चल रहा कि कौन बोल रहा है। आमतौर पर एक पायलट जहाज उड़ा रहा होता है और एक नहीं। जो पायलट जहाज नहीं उड़ा रहा होता वो अमूमन बजरिया रेडियो बात कर रहा होता है। अब ये वाज़ेह नहीं कि उस वक्त कौन जहाज उड़ा रहा था और कौन रेडियो पर बात कर रहा था, लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है कि फर्स्ट ऑफिसर खुद कितना खुलकर या बिला झिझक पायलट से बात कर सकता था। Without interference, without obscuration, was he clearly able to communicate with the captain? And lastly, in your years of flying, you have seen. आपका इतने सालों का तजर्बा है, आपने दुनिया भर में हादसा देखे हैं। ज्यादातर क्या वजह होती है, तकनीकी खराबी या इंसानी गलती? It usually comes down to a human error. आमतौर पर इंसानी गलती होती है या फिर तकनीकी खराबी की सूरत में भी इमरजेंसी के कवायद व ज़वाबित पर अमल में नाकामी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक चीज जहाज गिराने का सबब बन जाए। जब तहकीकात होती हैं और इसीलिए उनमें साल 1.5 साल लग जाता है क्योंकि हर पहलू देखा जाता है, तो अमूमन उन वाक़यात का एक तसलसल सामने आता है जो हादसे की वजह बनते हैं। That causes the accident to happen in the first place. दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अपने इस अज़्म को दोहराया है कि वो मगरबी किनारे पर आबाद फ़लस्तीनी आबादियों पर कब्ज़ा करके इसे इसराइली सरज़मीन का हिस्सा बना देंगे। इस हफ्ते उन्होंने कहा कि वादी उर्दन भी इस मंसूबे का एक हिस्सा है। इस आबादकारी से वहाँ पर बसे दर्जनों फ़लस्तीनी बदू ख़ानदान मुतासिर होंगे जो 1950 से वहाँ आबाद हैं। कोरोना बहरान से पहले भी मगरबी किनारे में फैली इन गरीब खैमा बस्तियों के मकीन मुश्किल से ही गुजर बसर कर रहे थे। ये एरिया सी है, मगरबी किनारे का 60% हिस्सा जो मुकम्मल इसराइली कंट्रोल में है और जिसका कुछ हिस्सा वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जबरन इसराइल में शामिल करना चाहते हैं। एरिया सी में आबाद बदुओं समेत 35,000 फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी सहूलियात से आ रही है। यहाँ कुछ सर्विसेज इसराइली और कुछ फ़लस्तीनी फराहम कर रहे हैं, जैसे तालीम और सेहत आमा फ़लस्तीन और प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली इसराइल, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए इसराइली रज़ाकार इन बदू ख़ानदानों में खुराक तकसीम करते हैं। आज हम खुराक जमा कर रहे हैं जिसमें कुछ मगरिबी किनारे और कुछ यरूशलेम में खरीदी गई। वो हमें बच जाने वाले फल और सब्जियां देते हैं जिनके पैकेट बनाकर हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज को देंगे। ऐसा हम हफ्ते में 1 या 2 बार करके जहालिन इलाके के इर्द गिर्द मुस्तहिक फैमिलीज को देते हैं। खान अल अहमर गाँव में मुकीम 7 बच्चों के वालिद ईद खमीस जहालिन कहते हैं कि कोरोना वबा की वजह से यहाँ सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इलाके के अक्सर बदू चरवाहे हैं जो ना तो मगरबी किनारे में अपनी डेयरी मसनूआत फरोख्त कर पा रहे हैं और ना ही इसराइली फार्म्स में अपने ज़रूरी कामों पर वापस जा सकते हैं। इस पूरे इलाके का कोई भी बदू कोरोना से मुतासिर नहीं। वो रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो किसी ने हमें बताया ही नहीं कि कोरोना क्या है और इससे कैसे बचा जाए। कोरोना की वजह से इसराइल ने सब बंद कर दिया। आप यरूशलेम की मार्केट नहीं जा सकते। फलस्तीनियों ने भी सब बंद कर दिया है। हम बैतलहम, रमला और एरेहा नहीं जा सकते। सब कुछ बंद है। खमीस के पूरे गांव और यहाँ मौजूद एक इटालियन चैरिटी के स्कूल को बरसों से इसराइल की जानिब से जमीन बोझ करने की धमकियाँ मिलती रही हैं। इन्हें गैर तस्दीक शुदा देहात कहा जाता है, यानी यहाँ बने घर गैर कानूनी तस्वुर किए जाते हैं जिन्हें मुनहदिम किया जा सकता है। फलस्तीनियों के मुताबिक
कानूनी बिल्डिंग परमिट हासिल करना नामुमकिन है। 2018 में इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसराइल इस गांव को मुनहदिम करके यहाँ मुकीम बदुओं को कहीं और भेज सकता है। इस अदालती हुक्म की आलमी तौर पर मजम्मत की गई। हम यहाँ अमन की उम्मीद के लिए कोशां हैं, क्योंकि आज अगर उन्होंने खान अल अहमर को तबाह कर दिया तो ये ना सिर्फ एरिया सी की दीगर 40 कम्युनिटीज के कत्ल और बेघर किए जाने का आगाज होगा, बल्कि दो कौमी हल और इस खित्ते में अमन का कत्ल भी। इस गांव की तबाही से इसराइल को कुर्ब जवार की दीगर यहूदी बस्तियों को मजीद फैलाने की हिम्मत भी मिलेगी, जिससे बिलाखिर मगरिबी किनारे की 2 हिस्सों में तकसीम से मुस्तकबिल में उसे इसराइल का हिस्सा बनाने का प्लान भी आसान हो जाएगा। लिंडा ग्रैंडस्टीन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। साल साल से आलमी मुबस्सिरीन मगरबी हुकूमतें और हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदान ये खबरदार करते आए हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान मुतलिकुल अनान बनते जा रहे हैं, और अब जबकि कोरोना वायरस के बायस शरह अमवात में कमी हो रही है, तुर्की में सोशल मीडिया पर पहले से जारी क्रैकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी गई है। नाकिदीन का कहना है कि तुर्की में जमहूरी रिवायात कमज़ोर पड़ रही हैं। तुर्क हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बायस इस्तांबुल और दूसरे शहर सुनसान पड़े हैं, मगर वबा के खिलाफ लड़ाई गलियों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर ताज़ा तरीन हिरासतों की खबर दी गई है। ये हिरासतें सोशल मीडिया पर वबा से मुतालिक सनसनीखेज समझे जाने वाली पोस्ट्स को रोकने के लिए बने कानून की खिलाफ वर्जियों पर की गई हैं। जिस तरीके से वजारत दाखिला लोगों के सोशल मीडिया पर पैगामात को मुल्क के खिलाफ खतरे का रंग दे रही है, वो बजाते खुद खौफजदा करने वाला है। ये लोगों के लिए वाज़े पैगाम है कि आप खामोश रहेंगे और हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे और ना ही वायरस के नताइज के बारे में कयासाराई करेंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो न सिर्फ वबा का खात्मा करेंगे बल्कि बकौल उनके मीडिया और सियासी वायरस को भी ख़त्म करेंगे। कुछ सहाफ़ियों को उनकी रिपोर्टिंग की वजह से मुकदमात का सामना है। इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि इस बहरान की आड़ में सदर उर्दवान इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। Now they refer to provocative coronavirus content. अब वो इसे इश्तियाल अंगेज मवाद करार देते हैं। चंद हफ्ते पहले तक हम दहशतगर्द प्रोपेगेंडा या तुर्क सदर की तौहीन की बात करें। ये जराइम तो बदलते रहते हैं, मगर लोगों के खिलाफ तहकीकात और मुकदमात की तादाद बढ़ती रहेगी। इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू ने हाल ही में कहा है कि हुकूमत उनके और हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ और मेयर्स के खिलाफ तहकीकात कर रही है और उन्हें ओहदों से हटाया जा सकता है। मेयर ने शहरियों में मास्क तकसीम किए और मुतासरीन के लिए एहतियात जमा किए। जवाब में सदर उर्दवान ने उन पर रियासत के अंदर रियासत कायम करने का इल्ज़ाम लगाया है। नाकदीन कहते हैं कि इन इक़दामात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। Yes, it will lead to further consolidation of power. We don't know how people. जी हाँ, इससे ताकत पर गिरफ्त मजबूत होगी। हमें मालूम नहीं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसा रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। आया वो इस सूरत हाल को मौजूदा बहरान का नतीजा समझेंगे या कोई वक्त आएगा जब वो हुकूमत और तुर्क रियासत के सख्त इक़दामात पर मज़ाहमत करना शुरू करेंगे। तुर्क सदर ताकत पर कब्जे के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए दावा करते हैं कि इन हालिया इक़दामात का मकसद वबा से निमटना है। अब जबकि इन्फेक्शंस की शरह कम हो रही है, नक्लो हरकत पर पाबंदियां नरम की जा रही हैं, झूठी मालूमात फैलाने और क़यास आराइयाँ करने वालों के लिए नई सजाएं मुतारिफ कराई गई हैं, जिनकी वजह से तुर्की की करेंसी गैर मुस्तहकम हो सकती है और वबा के दौरान लीरा की कदर में रिकॉर्ड कमी आई है। सदर रजब तैयब उर्दवान ने इन हालात के लिए सोशल मीडिया पर झूठी क़यास आराइयों को जिम्मेदार ठहराया है। डोरियन जॉन्स के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लाखों अफराद की ज़हनी सेहत पर तशवीश का इजहार किया है और उनके इलाज पर जोर दिया है। इनमें सिर्फ बीमार अफराद ही शामिल नहीं बल्कि हम सब भी शामिल हैं, ख़ास तौर पर तिबी अमला जो इस वक्त इलाज मुआलजे में मसरूफ़ है। आइए देखते हैं कि लोग इस सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं। मारिसा और उनके शौहर हुआन कार्लोस दोनों नर्स हैं और वाशिंगटन DC के एक अस्पताल में शदीद बीमार अफराद की देखभाल करते हैं।
इन मरीजों को ECMO पर डाला जाता है जो इनके फेफड़ों को बाईपास करके इनके जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाता है और ये उनकी जान बचाने का आखिरी हरबा होता है। मैं अपने साथ जरासीम घर नहीं लाना चाहती क्योंकि मेरी बेटी को सांस की बीमारी है और ये इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम फ्रंट लाइंस पर काम कर रहे हैं, इसलिए खतरे की नौइयत का अंदाजा है हमें। हम काम से आकर कपड़े बदलते हैं, जूते बाहर उतार कर आते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जरासीम साथ लेकर ना आए। वायरस से मुतासिर होने का ये खौफ सिर्फ मरीजों के साथ काम करने वालों को ही नहीं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदिश के दौरान किसी न किसी मरहले पर 1/3 अमरीकियों को शदीद जहनी परेशानी का सामना रहा है। Some people will respond in a fight or flight kind of. कुछ लोगों का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होता है, वो बहुत मुस्तरब होते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो इसके बरक्स रद्द-ए-अमल जाहिर ही नहीं करते, यानी बिल्कुल खामोश, या वो ये मरहला होता है जब वो सूरत हाल से समझौता कर लेते हैं। इस बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। इन माँ बाप के पास अपनी अंदरूनी कैफियत पर गौर करने का वक्त नहीं। इनकी सारी तवज्जो अपनी बेटियों के लिए हालात को नॉर्मल रखने पर है। हम अपने खदशात का इजहार उनके सामने नहीं करते, इसलिए उनको अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। माहिरीन समझते हैं कि अपने एहसासात दबा कर रखना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं। वालिदैन के एहसासात के बारे में बच्चों का मुशाहिदा बहुत तेज़ होता है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि वो खुद को अलग थलग कर लेते हैं या उनकी नींद मुतासिर हो सकती है, लिहाजा उनसे बात करना सूदमंद रहता है ताकि वो ये ना समझें कि इसमें उनकी गलती है। और ऐसे में जब सख्त हिदायत के साथ कुछ शहर फिर से खोले जा रहे हैं, इस छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक खदशात का शिकार हैं। मैंने अभी तालीम मुकम्मल की है, कर्ज लेकर ये रेस्टोरेंट खोला है और अगर अब ये ना चल सका तो मैं कई मसाइल का शिकार हो जाऊंगी। सेम और उनके वालिदैन अगरचे सफाई का पूरा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिक्र है कि आया ये काफ़ी है या नहीं। अगर यहाँ आने वाले खदशात का शिकार हुए, अगर उन्हें बैठकर खाने पर एतराज़ हुआ तो क्या होगा? लोग अब डिलीवरी भी कम करवा रहे हैं इस खौफ से कि ना जाने किसने खाना बनाया है और किसने उसे छुआ है। अगरचे ये खदशात अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन अगर ये बढ़कर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करने लगे तो इसका मतलब है कि ये वहम ज़हनी दबाव या जुनून की सूरत अख्तियार कर रहा है। थेरेपिस्ट इस तरह की सूरत हाल के शिकार अफराद के लिए ऑनलाइन मशवरों की पेशकश कर रहे हैं। चूँकि इस वबा के ख़त्म होने के ताहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मजबूत आसाब के मालिक अफराद भी फिक्रमंद हो रहे हैं। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। क्या हम कभी इस सूरत हाल से बाहर निकल पाएंगे और कब? कारोबार कब तक जमा रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है हमें सब कुछ बंद करना पड़े। प्यू रिसर्च की तहकीक के मुताबिक मुआशी परेशानियों और इन्फेक्शन के खदशात में घिरे अफराद में जहनी दबाव सबसे शदीद है। इस बात के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन का अंदाज़ा है कि आने वाले महीनों में जहनी मरीजों की तादाद बढ़ेगी। हस्पताल में मौरिसा और उनके शौहर को जहनी इलाज की सहूलत हासिल है। वो दबाव को मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्स होते हुए इसी सूरत हाल के शिकार अपने साथियों से इस मौजू पर गुफ्तगू करना, जिंदगी और मौत की हकीकत का इदराक होना और मरीजों को ठीक होते देखना, ये सब नॉर्मल रहने में काफ़ी मददगार है। वरानिका बाल्दिरास के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इंटरटेनमेंट की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर दुनिया के मकबूल तरीन शहरों में से एक रहा है, लेकिन कोविड-19 से शदीद मुतासिर होने के बाद अब इसे दुनिया एक नए और संजीदा अंदाज में हमेशा याद रखेगी। न्यूयॉर्क शहर के रिहायशियों के एक ग्रुप ने इस तकलीफदेह दौर में भी अपने हिस्से मजाक को बरकरार रखने का फैसला किया है। ये न्यूयॉर्कर्स उन उम्र रसीदा अफराद में शामिल हैं जिन्हें इस वबा से मुतासिर होने और इससे हलाक होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। आजकल हर हफ्ते इंटरनेट पर ये अफराद जमा होते हैं और एक दूसरे को लतीफ़े सुनाकर मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिशें करते हैं। इनकी इस मीटिंग को वर्चुअल कॉमेडी क्लास का नाम दिया गया है और इस क्लास में हर किस्म के मजाक की इजाज़त है, सिवाय कोविड-19 से होने वाली हलाकतों के बारे में। ये था हमारा आज का व्यू 360। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।